welcome. You're watching The Nation Wants to Know. I'm Padmaja Joshi. Ladies and gentlemen, there's a saying that truth has the habit of revealing itself. No matter how hard one tries to hide it or crush it, it emerges even more victorious. The vendetta case against an honest journalist and honest journalism has lost ground. 4 days ago, our colleague Bhavna Kishore, our video journalist Mrityunjay Kumar and their driver Parminder were arrested and thrown into jail by the Punjab government. While Bhavna was granted interim relief on Saturday, today the Punjab and Haryana High Court granted interim bail to Mrityunjay and Parminder, but not before giving a rap on the knuckles to the government of Bhagwant Mann. In a strongly worded observation, the High Court called out the illegal detention. That's right. That is the phraseology used by the Punjab and Haryana High Court. Illegal detention done by the Punjab police and the Punjab government. Calling the arrest of the video journalist and driver unfair, the court said that the Punjab cops even failed to convince the court why the duo had been arrested. It highlighted how there was an attempt to ring-fence our crew because the cops didn't even tell the camera person and driver that they can secure bail by furnishing a surety. The court also questioned the judicial magistrate for failing to release the driver and video journalist earlier on bail. The singeing observations forced the state government's lawyer to admit that both our VJ and the driver should never have been jailed since they had no role in the case. There was nothing made out against the video journalist except getting into an argument with the complainant. All that the driver was accused of was rash driving. The lawyer defending Times Network says that it only proves that the Punjab cops are at fault. Listen in. This is what the court has observed in the detailed order, which is yet to come, that the investigating officer and the two judicial officers have acted in a mechanical manner and their custody should not have been there, and they should have been given the opportunity to furnish the bail bond once the offences were bailable. So this is a larger question which the court has observed. Now, this has armed the Aam Aadmi Party's political opponents. The BJP has alleged that the AAP is trying to fix those who are exposing the party because, remember, these arrests took place on the back of a series of exposés done by the Times Network as a part of Operation Sheesh Mahal that completely exposed the 45 crore splurge done by the Delhi Chief Minister on his Sheesh Mahal. So much for Mr. Kejriwal and the tall promises and the high moral ground that he and his government and his party has been taken. He's building a huge mansion for himself at the cost of some 45 crores during a COVID time, importing marble, everything and all that. And when he made a promise, I will not stay in any big bungalow, his own former colleagues are castigating him. So much for being Anna Hazareji's, calling him as guru and talking of these ideals. And when the media exposes it, he intimidates them by arresting the Times Now correspondent driver and no bail given on a bailable offence. This really takes the Punjab police reputation to a new low. Now, the woman who stood brave in the face of it all revealed how the crew was only targeted because Times Network ran Operation Sheesh Mahal, so much so that the station house officer, the SHO, told Bhavna in as many words that we should stop running stories on Operation Sheesh Mahal and Arvind Kejriwal. Bhavna, in her own words, also said that the SHO told her that there was pressure from the top to act against the Times Network crew. भावना यहाँ पर आ चुकी है और नाविका जी वो रिसीव कर रही है और निश्चित तौर पर एक जो पीड़ा है, जो दर्द जो उसने झेला है, वो अपने आप में ये कहानी है जो दिखाता है कि किस तरह से कभी जो सच है वो कभी पराजय नहीं होता। ये इसकी आंखों को देखिए, उसने जो चीजें सहा है, जो बर्दाश्त किया है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि किन हालातों से, किन चीजों से भावना गुजरी है और आज वो वापस है यहाँ पर, क्योंकि सच जो है कभी पराजित नहीं हो सकता, कभी हारता नहीं है और सच जो है वो आईने के तरह आपके सामने खड़ा होता है। और ये दिखता है कि कैसे एक साजिश को कैसे नाकाम किया गया, जो एक साजिश थी भावना के खिलाफ, टाइम्स और नवभारत के खिलाफ, वो चीजें देखो।
हर कोई इंतजार कर रहा है, हर कोई इंतजार कर रहा है। और ये हमारी टीम की सबसे छोटी बच्ची है और बहुत तकलीफ, बहुत दुख था जितना इसने झेला है, इसकी बयां शायद हम और आप ना कर पाए, लेकिन ये अपने आप में बताता है कि क्या उन्होंने इसने झेला है पूरे अपने 2 दिनों के भीतर। न्यूज फ्लोर पर है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भावना के खिलाफ टाइम्स ऑफ नवभारत, क्योंकि हमने वो सच दिखाया, वो आईना दिखाने की कोशिश की और इसके बाद एक साजिश है और उस साजिश की शिकार हुई भावना। और भावना अब की जो उसने झेला है, जो दर्द उसने महसूस किया है, जो जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जो पीड़ित जिस तरह से हुई है, वो दिखाता है कि कैसे उसने अपने आप को संभाला, लेकिन इसके बावजूद वो झुकी नहीं, वो रुकी नहीं, वो किसी तरह से कहीं टूटी नहीं, वो सच के साथ खड़ी है। ये सबसे बड़ी बात की वो सच के साथ है और हर कोई उसका स्वागत कर रहा है। देखिए न्यूज रूम के भीतर हर कोई स्वागत कर रहा है भावना किशोर का, क्योंकि भावना अब एक सच पे की तस्वीर है, सच पे आप कह सकते हैं कि एक सच का चेहरा के तौर पर भावना उभरी है। पूरा न्यूज रूम आपको दिखाऊंगा मैं, पीछे पूरा न्यूज रूम दिखाइए किस तरह से पूरा न्यूज रूम खड़ा है अपनी भावना के स्वागत के लिए, क्योंकि भावना ने उस सच्चाई के साथ खड़ी थी और उसने वो चीज बर्दाश्त किया है। अब यहाँ पर तमाम पूरा न्यूज रूम एक बार देखिए तो हर कोई इंतजार है खड़े होकर अपनी उस बच्ची के लिए, अपनी उस शेरनी के लिए जिसने ये लड़ाई लड़ी, जो सबके साथ यहाँ पर खड़ी है। देखिए नाविका जी कितना बड़ा आप इस तरह से आई है, अपनी बच्ची ऐसे आई, आपके चेहरे पर भी, आपकी आंखों में भी वो आंसू दिख रहे हैं। अपने घर का बच्चा अगर जाएगा तो आंसू तो आएंगे, लेकिन भावना मुझे गर्व है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम ना डरी, ना तुमने हिम्मत छोड़ी। सबको तुमसे सीखना पड़ेगा कि जर्नलिस्ट ऐसे ही नहीं बनते, पत्रकार ऐसे ही नहीं बनते, चुनौतियों का सामना करते हैं और तुमने जिस तरह से किया आज हम सबके लिए सीख है। सबको बताओ पूरे न्यूज रूम को कि कितनी स्टोरीज के आइडियाज आ गए हैं तुम्हें। मैंने जेल में बहुत सारे जो कैदियां थी फीमेल, उनके बारे में बहुत स्टोरीज की हैं और मतलब दिमाग में सब कुछ है। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं लिखूं, ना मेरे पास पेपर या पेन थे, बट मैंने कैसे स्मगलिंग लड़कियां करती हैं, औरतें कैसे इसमें शामिल होती हैं, इस पे मैंने स्टोरीज बहुत की हैं कि पंजाब तो जाना जाता है कि किस तरह से ड्रग्स वहाँ का पूरा है और उस बिजनेस को कैसे लड़कियां हैंडल करती हैं, इस पे मैंने स्टोरीज की। और कैसे लड़कियां जो हैं, जो कॉल गर्ल्स हैं, फैमिली में उनको नहीं मिल पाता है सपोर्ट, तो इस तरह की चीजों में आ जाती हैं। कुछ ऐसी भी थी मैं जिनके साथ बैरक में मौजूद थी, उन्होंने मर्डर भी किए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये हिम्मत आपको कैसे। मर्डर के साथ रखा हुआ था, मर्डर के साथ में तुम्हारे साथ जो थे मर्डर के हथियार थे, साथ रखा था। और इस पर अलग से मुझे लगता है भले उन्होंने क्राइम किया हो, लेकिन मेरे पास तो इतने मतलब जो स्थिति मेरे पास इतने चद्दर वद्दर नहीं लेके गई थी मैं, तो ऐसा नहीं चल। तो उन सभी ने मेरी मदद की है, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, उन्होंने जिसने मेरी मदद की है इस सबसे मुश्किल वक्त में, वो मेरे लिए शायद भगवान के भेजे हुए दूत होंगे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। कल नाविका जी के साथ, नाविका जी कल आप मुलाकात किए एक गुप्त जगह पे, दोनों की मुलाकात, क्या था उस समय, कब क्या लगा जब नाविका जी साथ बात की? जब नाविका जी पहुंची उस वक्त तक मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं शायद, मुझे एक्चुअली जेल में मौजूद मैं जहां पर थी जिस बैरक में, उसमें टेलीविजन नहीं था और मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही थी कि क्या हो रहा है बाहर, क्योंकि मुझे बेल के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई स्टोरी तो नहीं मिस हो रही, ये चिंता थी। तो मुझे कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ये पता चल गया था कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, वो बार बार भाग के आ रहे थे कि मुझे उन लड़की को देखना है
उस लड़की को देखना है जो हमारे आई हुई है जेल में, तो वो मुझे आके बताती थी टीवी पे ना आपके चल रहा है, वो एक मैडम है नाविका, वो बोल रही है कि हमारी पत्रकार है, हमें गिरफ्तार करो, तो एवरीवन वाज सपोर्टिंग। नहीं, मैं एक और चीज दिखाऊंगा, एक तस्वीर, और इनकी माँ और इनके पिताजी हैं, और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी ताकत अगर कोई भावना की है तो उनकी माँ और उनके पिता है, जो इस बुरे वक्त में भी और हौसला अफजाई करने में सबसे आगे रहे। कितना मुश्किल भरा वक्त था। अब उसका वर्णन करना इस वक्त तो मुश्किल है, लेकिन वास्तव में बहुत तकलीफदायक था। अब हम लोग वहां पे उतना दूर बैठे थे, सर आपने जितनी बहादुरी से किया है, बेटी का सुन के भागे हम लोग वहां तुरंत, कर तो कुछ नहीं सकते थे। एक इससे बात हुआ रात को, हमने कहा बेटा हिम्मत रखना और भगवान का नाम लेती रहना, हनुमान जी की चूंकि भक्त वो भी है, उन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी की भक्ति करती रहना, हनुमान चालीसा पढ़ती रहना, भगवान सुन लेंगे तुम्हारा। और ऐसे वक्त आपने बात की, उससे भी उसको नई ताकत आई। हमने कहा हिम्मत मत हारना बेटा, जीवन में सब होता रहता है उतार चढ़ाव, और इससे घबराया नहीं जाता है। ये तुम्हारा भी बहुत आगे स्ट्रगल करना है, क्योंकि भाई हम लोग बहुत मिडिल फैमिली से आते हैं, शुरू से पढ़ने में बहुत तेज थी, हमारी तो इच्छा थी कि सिविल सर्विस में जाए या किसी बैंकिंग में जाए, लेकिन कहा नहीं पापा हम जाएंगे तो मीडिया लाइन में ही। तो अब उसकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर उसका एडमिशन कहे, हम क्या भाई मीडिया की पढ़ाई बहुत बड़ी उसमें हो जाती है, कहा नहीं हमको गवर्नमेंट में मिल जाएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे। फिर चलो ठीक है, भगवान से दया किए, IIMC में इसका हो गया, दिल्ली में ही पढ़ाई की अपना, सब तब सपोर्ट मिलता रहा, काफी लोगों से यहाँ परिचय भी था पहले से भी, और सब भी वो अपना पढ़ाई पूरा कर ली। पढ़ाई करने के बाद फिर जॉब इधर तक करते हुए आपके चैनल पहुंच गई, और मुझे लगा कि अब इसका स्थिर जगह हो गया। और मैडम से हम पहले नहीं मिले, टीवी पे देखते थे, लगता था कि हाँ किसी अच्छी जगह है, बहुत हिम्मत था। और ये सत्य है कि इतने बड़े घटना में भी जिस तरह से आपके चैनल ने साथ दिया और देश की जनता ने जो सम्मान और जो साहस उसका बढ़ाया है, हम उसके बहुत आभारी हैं। पूरा देश आपके साथ था, भावना के साथ था। आप जी भावना के साथ था, पूरा देश खड़ा था, सत्य के साथ खड़ा था पूरा देश। और घबराई होंगी? हाँ बिल्कुल घबराए थे, ये सुनकर कि मतलब भावना गिरफ्तार हो गई है, ये सुनकर मैं बहुत घबराई थी। लेकिन एक हिम्मत था कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, शुरू से बहुत हिम्मती है, और जिस लाइन में ये इसने चाहा है कि इसको हमको जंग जीतना है वो जीती है, या पढ़ाई की लाइन में हो या किसी भी लाइन में। ये है भावना की, और भावना भगवान पे भी बहुत भरोसा रखती है, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरी बेटी के ऊपर, बहुत बड़ी। फिर मैम से बात हुआ, मैम ने बहुत हिम्मत दिलाया, वो मेरी बेटी है, बहुत हिम्मत किया, उतना हम नहीं कर सकते थे। सत्य आप चिंता नहीं करिए, वो मेरी बेटी है, अब तो वो देश की बेटी बन चुकी है। नहीं टाइम्स नव भारत ने इतना साहस बढ़ाया, हम उतना दूर बैठे थे, मैडम ने कहा कि आप चिंता न, कि मेरी बेटी है। मुझको लग गया कि वो हो जाएगी, बरी भी हो जाएगी और इससे मुक्त भी हो जाएगी। इसलिए बस हम लोग जरूर यहाँ आए, लेकिन सिर्फ उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके पहले वो इतनी हिम्मत बढ़ा चुकी थी मैम कि हम बहुत एकदम आशान्वित थे कि नहीं उसके साथ कोई घटना नहीं होगा, वो आ जाएगी। अब तो डर नहीं लग रहा? तो नहीं डर देखिए, डर थोड़ा देर की लगा, हमको लगा जब जेल पहुंच गई है तो पता नहीं कितने दिन में बेल हो, क्या हो, कितना दिन उसको रहना पड़ जाए। लेकिन उसको हमने कहा था बेटा साहस रखना, 2-4 दिन लगेगा, ऐसा केस नहीं है कि तुमको बहुत लंबे अवधि तक रख सकते हैं। लेकिन वही हुआ, आप लोगों के प्रयास से वो दूसरे दिन छूट गई, रिलीज हो गई। लेकिन ये आम आदमी की बेटी है, नहीं बेटी है, लेकिन अरे वो तो आम आदमी की साजिश की शिकार हो गई आपको? हाँ, अब क्या इसके लिए कहे, देखिए सब बहुत बात है, लेकिन हाँ ये है कि किसी भी बच्चों के साथ, मीडिया लाइन में इतने बच्चे हैं, सबके बच्चे कहाँ से देश के कोने कोने से आके यहाँ पे काम करते हैं, किसी भी चैनल में, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। एक स्वतंत्र आपका वो है। कभी लगा क्योंकि बेटी को आपने जब पत्रकार बनाया तो यही सोच के बनाया कि सवाल पूछना है दूसरों से, इसने भी सवाल पूछा था, बदले में जेल हो गया। तो देखिए कहीं भी किसी को कुछ हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि ये पत्रकार है या इसी के साथ हुआ। जिस तरह मतलब देश का ये चल रहा है
मतलब किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इन्होंने बहुत हिम्मत किया। पत्रकारिता में आगे पीछे अच्छे बुरे सबके बीच पहुंचना पड़ता है, लेकिन इसने बहुत साहस का काम किया है। निश्चित तौर पे बहुत साहस का काम किया है। हमको थोड़ा बड़ा पापा आप मत घबराइएगा, हम जितना दिन रहेगा हम फाइट कर लेंगे। और आज भी बहुत हिम्मत के काम ले रही है। ये तो बहुत बड़ी हिम्मत है इसकी। हिम्मत ही बहुत है भाई, इसमें तो हम मानेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इसकी हिम्मत जो है उसने न सिर्फ अपने हम लोग के साथ भी अब जिससे बात हुई सबकी हिम्मत बढ़ाई, और साथ में सबसे बड़ी बात की जो कैमरामैन और ड्राइवर थे उसकी वो बहुत उसकी हिम्मत भी तुमने लगातार बढ़ाई। स्थिति रात तक बहुत खराब हो चुकी थी, ऐसा नहीं था। और मैं शायद अपने आप को उस वक्त तक बहुत इनोसेंट समझ रही थी और भरोसा कर रही थी कि शायद मैं रात होते होते दिल्ली वापस लौट जाऊंगी। लेकिन ड्राइवर की स्थिति बहुत खराब थी, वो कुछ उसने खाया नहीं था, वो बहुत रो रहे थे। और उनके आंसू देख के मुझे उनके परिवार और खासतौर पे मृत्युंजय जो कैमरा पर्सन है, उनके बेटे का ट्यूमर का उसी दिन ऑपरेशन था, सर का ट्यूमर, कि एक फादर का एक फीलिंग कैसे हो सकता है। मैंने बोला मृत्युंजय, और बात करने के लिए काफी जिद कर रहे थे, बोल रहे थे एक बार मेरी बात करा दीजिए। मेरी वाइफ बेटे को लेके हॉस्पिटल में है, मैक्स हॉस्पिटल में, और स्थिति बहुत नाजुक है। तो मुझे वो घबराहट, वो डर, कहते हैं ना, वो दूसरे का दुख देख के एक डर मन में बैठ गया है कि भगवान ना करे कोई इतना हेल्पलेस हो जाए कि वो अपने परिवार से संपर्क ना कर पाए। मुझे लगता है उस समय मैम आपको भी हमने देखा, नाविका जी को भी उस समय खुद नाविका जी को देख के कभी ऐसा लगा नहीं कि वो कभी अपने आप को हेल्पलेस फील करती है। बट उस दिन मुझे लगा कि वो अपने आप को शायद तुम्हारी ट्रॉमा के बराबर तो टच नहीं कर सकती है वो, लेकिन उनको इतना परेशान मैंने जिंदगी में देखा उस समय। लेकिन आज अभी बेल हो गई है मृत्युंजय की भी, परमिंदर की भी। बस जैसे ही जेल से छूटेंगे एक पार्टी होगी। RP Singh, spokesperson of the BJP, joins us along with Dr. Akashdeep Muni and Parvinder Singh Sethi, both political analysts. Dr. Akashdeep Muni, what do you have to say about these arrests? This particular case, Padmaja, it's startling, and how your channel stood by the female journalist in Punjab is full of accolades, and whatever happened is very good. No, sir, don't worry about people standing. Plenty of people stood by us, those who we expected, those who we didn't expect. No, hold on. No. Don't do whataboutery. No, hold on a second. Hold on a second. Are you a tyrant? No. Hold on a second. No. Don't give me bhashan. No. Sir, the court today has said this was an illegal arrest. It was completely wrong and procedure was not followed. The least you can do as an ardent defender of the Aam Aadmi Party is say sorry to these poor parents from Gorakhpur who had to go through these days of anguish. आपका चैनल है, जो करना है करो। It is terrible. हाँ है हमारा चैनल, but कम से कम we are not arresting people illegally. At least say sorry, sir. It is expected out of decency. For God's sake, sir. At least have the decency. Say sorry for what happened. आपका चैनल है, जो बोलना है। Just say what happened, what was done is wrong and regrettable. Just say that much. That's it. No, you cannot let me say what I should say. I'll say what I have to say. Otherwise, you bring your own, record it and play it. It's an illegal arrest. No. It was an illegal arrest. Let me tell you one thing. It was an illegal arrest. This case has been very nicely followed by you. Very equally. But what happens to your journalism when things happen and BJP rule states against journalists? Why did you arrest a woman journalist, a video journalist, and a poor driver? You arrested them illegally. And you're still sitting here on TV and you're doing whataboutery. आप देशवासियों को भाषण तो मत ही दीजिए सर। पुलिस को आप प्राइवेट मिलिशिया की तरह इस्तेमाल करते हैं और अब आप राष्ट्र के नाम संदेश तो मत ही दीजिए डॉक्टर आकाशदीप मुनि। प्लीज आज के दिन तो आप भाषण मत ही दीजिए। जस्ट से व्हाट हैपेंड वाज रॉन्ग एंड रिग्रेटेबल एंड हैपेंड इन अ मोमेंट ऑफ बैड जजमेंट। I don't have to, because I made a perfectly legitimate request to you. But I want your producer to not lower the voice. Nobody is reducing your voice, sir. That is the thing. Despite the fact that the party you admire and support picked up our woman colleague
and jailed her, Mr. Sethi, jailed her. You know what people should watch? I think it's most important, Mr. Sethi, that people watch that a girl who's just 31, actually I shouldn't call her a girl, a lady journalist who's 31 years old, Mr. Sethi, was picked up and jailed with murder accused, Mr. Sethi. नहीं देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक पत्रकार के साथ अगर ऐसी घटना होती है उसका हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते। लेकिन अगर वहां पे अगर आप ये कहिए कि एक सरकार के द्वारा एक एक्सीडेंट प्रायोजित किया गया कि वहां पे उन्होंने कहा लुधियाना से गाड़ी आएगी, उसके आगे ई रिक्शा आ जाएगा, उसके बाद होगा। अगर पुलिस वालों ने कोई गलत काम करा है, उनको कोर्ट से राहत मिली है, अगर किसी पुलिस वाले ने उनके साथ ज्यादती करी है तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। तो खत्म हो गया ना सेठी साहब, अगर मगर खत्म। आप किसी कोर्ट ने बोला है हुआ है गलत ही नहीं हुआ है, किसी सरकार इलीगल। हाउ कैन यू टारगेट ये न्याय संगत नहीं था। टारगेट द गवर्नमेंट, हाउ कैन यू टारगेट द गवर्नमेंट? Because who do you think? Okay, hold on a second. अगर गलत काम हुआ है, so at whose instance do you think the police did it? पुलिस आरपी सिंह अपनी मर्जी से कर रही थी। पुलिस ने एक दिन सोचा कि ये तीन जो है इनको उठा के हम जेल में डाल देते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस में हम इनको जेल में डाल देते हैं, SC ST लगा देते हैं, क्योंकि उस दिन SHO का मन था, SHO को पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि चलो SC ST लगा देते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट। आरपी सिंह। पद्मजा, सचमुच दोनों को थोड़ा थोड़ा चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। जिस प्रकार की भाषा ये इस्तेमाल कर रहे हैं आपके चैनल पर, मैंने इमरजेंसी झेली है। मैंने 1987 राजीव गांधी का वो कॉल झेला जब उन्होंने अखबार बंद कर दिए थे। मैंने आपको टोका नहीं, अरे रुको दोस्त, तुम सरदार नहीं हो, तुम सरदार नहीं हो। मुझे शक है कि तुम सरदार हो, मुझे शक है कि तुम सरदार हो। सरदार होकर ऐसी बात करेगा किसी महिला के लिए? सर, आप सरदार भी नहीं हो नरेंद्र, आप सरदार, आपने सिक्की, आप सरदार भी नहीं हो। यू माइंड योर लैंग्वेज। अगर आपने डिबेट महिला मैं माइंड नहीं करूंगा, मैं इससे आगे बढ़कर करूंगा। मैं अभी बताता हूँ। अरे आप रत्ती भर आप में सिक्की भी नहीं है, आप में रत्ती भर सिक्की भी नहीं है। अगर थोड़ी सिक्की होती तो आप तुरंत कहते कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया गलत किया, उसमें क्या जाता था। मैं पद्मजा आगे बताता हूँ जो आगे हुआ इसमें। Please, let's not make this personal. I just have one thing to say, sir. I have just one thing to say. You don't owe us an explanation, Akashdeep Puni or Mr. Sethi. You owe it to the parents of Bhavna, to the family of Mrityunjay, and to the family of Parminder. One who was kept jailed with murder accused, and the other whose son was being operated upon for a head tumor when you put him under illegal arrest, and a poor driver who was only picked up for a bailable offense but was kept in jail illegally. You only have them and your conscience to answer to. I'll leave it at that. Thanks very much for watching.